নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। পোটকার শয়ে শয়ে সবর পরিবারগুলিকে পিটিজির আওতায় চাল বিতরণের জন্য ডাকিয়া যোজনার অন্তর্গত একটি টিম গ্রামে পৌঁছায়। যখন সবর পরিবারের লোকেরা চাল বিতরণকারী বীরেন্দ্র কুমার পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা চিনি এবং কেরোসিন তেল কবে পাবে, বিতরণ কর্মকর্তা বীরেন্দ্র কুমার পণ্ডিত বলেন যে তারা কেবল চালই বিতরণ করতে পারেন। চিনি এবং কেরোসিন তেল, লবণ বিতরণ করার জন্য যদি আসে তবে সেগুলি অবশ্যই বিতরণ করা হবে। তবে সবর পরিবারগুলি লবণ এবং কেরোসিন তেল পাক না পাক, এদিকে ফেব্রুয়ারি 2021-এ প্রত্যেক রেশন কার্ডধারীরা 1.5 লিটার কেরোসিন তেল এবং 1 কেজি লবণ অবশ্যই পেয়েছে। সত্য যাই হোক না কেন, কিন্তু সবর পরিবারগুলি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চাল দিতে যে আসে শুধু চাল দেই চিনি দরকার তো তাদের চালটাই পাই, আর চিনিও নাই, কেরাসিন নাই, নুন নাই, আর এখন কিছুই নেই দিয়ে, আর ওই চালটাই দিচ্ছে খালি কত মহিনার লাগে। তোমরা বলো না চিনি লাগে নাই বলি যে, আরো নাই বলে যে আরো কটার গাই তো দিচ্ছে, চিনিও দিচ্ছে, নুন দিচ্ছে, কেরাসিন দিচ্ছে। তোমরা কাইল আনছো চিনি উনি নাই আনি बाजार किनो নাই কিনি। चीनी, किरासन तेल और नमक क्यों वितरण नहीं हो रहा सबर परिवारों को? चीनी और किरासन तेल के बारे में ऐसा कोई लेटर या कुछ ऐसा नहीं आया। तो आपने मशीन में फरवरी माह में उठाव दिखाया है किरासन तेल और नमक का, वितरण नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? मार्च महीने में 351 कार्डधारियों को ही चावल मिल पाया, आपने 375 उठाया, बाकी क्या हुआ? मार्च महीना में बाकी जो 402 में इतना कम हुआ है, ये क्या फर्जी लोग हैं क्या? एक्चुअल में धरातल में 402 की वितरण हुआ है। ये मशीन में जो दर्ज नहीं है बोल के दिखा रहा है इनकी करते समय। कुछ लोगों का कार्ड भी एक नाम का 2 कार्ड भी ये हुआ। कई ऐसे परिवार भी देखने को मिले होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं है अभी भी। राशन कार्ड नहीं भी है कुछ लोगों का। इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? इसके लिए तो आधार और ये कलेक्शन लाए हम लोग, ताकि उसका जांच कर सके बढ़िया से, उसको भी आगे प्रोसीड कर सके। ঝাড়খণ্ড সরকারের করোনার গাইডলাইনের অন্তর্গত রাত 8টার পরে বন্ধের নির্দেশ অনুসরণ করতে প্রশাসন রাতের বেলা নিয়মিত রাস্তায় অভিযান চালাচ্ছে, যার অন্তর্গত মঙ্গলবার প্রশাসন শহরের বিভিন্ন মার্কেটে ঘুরে দেখে। এই সময় বেশ কিছু বাজারে দোকান খোলা ছিল, তাদের কড়া সতর্কতা দিয়ে দোকানপাট বন্ধ করানো হয়। এই অভিযান সাচ্চি বাজার থেকে গোলমুড়ি টিন প্লেট হয়ে বাড়িটি মার্কেটে গিয়েছিল, যেখানে কয়েকটি ছোট দোকান সহ আয়ুর্বেদিক দোকান খোলা ছিল। আয়ুর্বেদিক দোকানে উপস্থিত কর্মীরা বিনা মাস্কে থাকার কারণে সিপিএসপি সুভাষচন্দ্র জাট, এডিএম এনকে লাল, জেএনএসির বিশেষ কর্মকর্তা কৃষ্ণ কুমার তাদের কঠোর সতর্কতা দিয়ে দোকানগুলি বন্ধ করে দেন। थैंक यू। थैंक यू। आज जो कहाँ पर आप जो है कि अभियान चलाए हैं और क्या दिखा आपको? देखिए, हम लोगों की विभिन्न टीमें, इंसिडेंट कमांडर, थाना प्रभारी, पूरे शहर में हम लोग घूमते हैं अपना अपना एरिया देख के। मैं और एडीएम लाइन ऑर्डर साहब और एसडीओ साहब और कंसर्न डीएसपी साहब लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। जहाँ पे कहीं सूचना मिलती है या जहाँ पे पिछली शाम को कोई टेंडेंसी देखी गई है कि उन्होंने नियम का वायलेशन किया, वहाँ जाके चेक करते हैं। जब बारीकी मार्केट हमने चेक किया, यहाँ पे हमको इस तरह की कोई समस्या नज़र नहीं आई कि उन्होंने नियम का उल्लंघन किया हो। आगे बाकी क्षेत्र भ्रमण करेंगे, उसमें देखते हैं कि क्या करना है। পোটকা থানা এলাকার কালিকাপুরের কেষ্টনগর জঙ্গলে গাভী হত্যা এবং মাংস পাচারের মামলায় কুড়াল সহ বাবলু মাঝিকে গ্রেপ্তার করেছে পোটকা পুলিশ। थाना प्रभारी सर सूचना दी मुझे, मैं आया, मैं इसको जानने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि गो का है किसका है, इसलिए इसको जानने के लिए हम लोग फॉरेंसिक लैब हटवा रांची
गिरफ्तार भी हुआ है क्या? एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। পটকার হলদিপুকুর স্থিত নেতাজি সুভাষ পাবলিক স্কুলটি সিবিএসই থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য স্বীকৃতি পেয়েছে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ওয়াই মঙ্গালক্ষ্মী বলেছেন যে নেতাজি সুভাষ পাবলিক স্কুলকে সিবিএসই তরফ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে করোনা ভাইরাস থেকে এখনো পর্যন্ত 29 জন প্রাণ হারিয়েছে। এর মধ্যে রাজধানী রাঁচিতে 6 জন, জামশেদপুরে 6 জন, হাজারিবাগে 4 জন, রামগড়ে 3 জন, সিমডেগায় 3 জন, বোকারোতে 2 জন, ধানবাদ, গোড্ডা, জামতারা, খুঁটি এবং পশ্চিম সিংভূমের এক জন করে সংক্রমিতের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে পুরো রাজ্য থেকে 2844টি নতুন সংক্রমিত পাওয়া গেছে, যাতে সর্বাধিক সংখ্যক 1049টি নতুন সংক্রমণ রাঁচিতে নিশ্চিত হয়েছে। चाहे कितना भी बड़ा निजी अस्पताल होगा, और यदि इस दुख में, इस तकलीफ में जब लोग लाचार बेबस हैं और यदि इस समय उन्होंने कोई कोताही की तो हम बड़े से बड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। हम लोग पूरी तरीके से हम ऐसा नहीं करेंगे कि अचानक रात 8 बजे आके घोषणा कर दिया या अचानक घोषणा कर दिया। हम लोग जरूर कर रहे हैं और उसी का ये क्रम है कि हमने रात 8 बजे जो है सभी प्रतिष्ठानों को और जो अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ कर रहे हैं उन लोगों को रोकने का काम किया है और जुलूस वगैरह इस सब पर भी अंकुश लगाया है। কোভিড-19 সংক্রমণের সময় রাঁচি জেলার বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালে বেডগুলির কি অবস্থা তা আপনি এই ক্লিকের মাধ্যমেই তথ্য পাবেন। জেলা প্রশাসন দ্বারা কোভিড-19 লাইভ ড্যাশবোর্ডের লঞ্চিং করা হয়। জেলা প্রশাসক রাঁচি ছবিরঞ্জন অনলাইনে কোভিড-19 লাইভ ড্যাশবোর্ডের উদ্বোধন করেছেন। कोविड में कितने केसेस लाइव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, क्या रिकवरी रेट है हमारा, इसके अलावा किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, इसको भी हम लोग समय समय पर अंतराल पर जैसे जैसे हमारे पास सूचना उपलब्ध रहेगी उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और ये ओपन है सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी देख सकता है कितने बेड्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है अभी तक, कहाँ पर वैक्सीनेशन होना है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको डेली बेसिस पे आपको जो है इस वेबसाइट के माध्यम से मिलते रहेंगे। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাইমন মারান্ডি গতকাল গভীর রাতে কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যুর পরে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার পরিবারের শোকের ছায়া নেমে আসে। জামশেদপুরের সাক্ষী কার্যালয়ে দলীয় কর্মীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার সময় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। हम लोग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इसका सिद्धांत पर चलने के हम लोग राह पर चलने के लिए क्या नाम हुआ हमारा नाम मनोज है। সংবিধানের জনক বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী সারা দেশে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে শহরের যুবকরা বাবা সাহেবের প্রতিমাতে মাল্যার্পণ করে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। আম্বেদকর কমিটির লোকেদের বিরুদ্ধে এসডিও এফআইআর করার আদেশ দিয়েছেন। যেখানে জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছিল সেখান থেকে মাত্র 20 মিটার দূরেই ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে এসডিও পুলিশ বাহিনী ডেকে ভিড় সরায়। मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोविड का गाइडलाइन जो सरकार का है उसको भी हम लोग मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कुछ लोग पहले से भी थे, हम लोग के भी लोग आए तो थोड़ा भीड़ भाड़ हो गया, लेकिन हम लोग पूरी तरह से कोविड के गाइडलाइन को मानते हुए एसडीओ साहब वही समझा रहे थे कि कोविड का गाइडलाइन है, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी को पालन करना है, तो हम लोग उसको पालन करते हुए आज बाबा साहब को श्रद्धासुमन समर्पित करने के लिए। तो अब एसडीओ साहब का अधिकार के क्षेत्र में आता है, वो एफआईआर करे जो करे, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और बाबा साहब का जयंती को मनाने से कोई नहीं रोक सकता। कैप्सूल्स फार्मा, योर हेल्थ पार्टनर। यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना?
तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Our address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number: 821041 2836 9431380979 7209190979. আজ জেলা প্রশাসক রাঁচি শ্রী ছবি রঞ্জনের সভাপতিত্বে বেসরকারি ল্যাব সঞ্চালকদের সাথে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কালেক্টরেটে স্থিত জেলা প্রশাসক সভাগারে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপ উন্নয়ন কমিশনার রাঁচি, উপবিভাগীয় কর্মকর্তা রাঁচি সদর, জেলা প্রশাসক স্থাপনা রাঁচি, বিভিন্ন বেসরকারি ল্যাবগুলির পরিচালক, প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। कई लोगों के फीडबैक जो आ रहा था कि सैंपल कलेक्शन जो वहाँ नहीं हो रहे हैं, और यदि सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों की समस्याओं से हम लोग अवगत भी हुए। इनके पास भी मैन पावर जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, जिस कारण से ये लोग भी सही टाइम पर टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। परंतु कुछ लैब ऐसे भी हैं जो कि इनके पास कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो जो है उतने जो पर्याप्त मात्रा में इनको ऑप्टिमम लेवल पे इनको कलेक्ट करना चाहिए सैंपल उतना कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन सभी लैबों को निर्देशित किया गया है कि आप लोग जितना आपकी कैपेसिटी है उतने पूरी सैंपल कलेक्ट करें और डेली बेसिस पर रिपोर्ट करें। জামশেদপুরে ক্রমবর্ধমান করোনা সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব সিংভূম জেলা প্রশাসন কোভিড হাসপাতাল ও কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র তৈরিতে নাগারে কাজ করছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জেলা প্রশাসক নিয়মিত বেসরকারি হাসপাতালের পরিচালকদের সাথে বৈঠক করছেন। এর সাথে হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইনও দেওয়া হচ্ছে। এদিকে বুধবার জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, TMH, MGM ইত্যাদি চিকিৎসক সহ প্রায় 1 বছর ধরে বন্ধ পড়ে থাকা সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল মেডিকাকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তর করতে হাসপাতালের পরিদর্শন করেছে। डॉक्टर्स, माहे के डॉक्टर्स, MGM के डॉक्टर्स, सिविल सर्जन की, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी कोविड ट्रीटमेंट बेड के रूप में कन्वर्ट करते हुए कोविड हॉस्पिटल के रूप में रन करते हैं। জামশেদপুর মহানগর বিজেপি জামশেদপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। জমা দেওয়া স্মারকলিপির মাধ্যমে বিজেপি নেতারা টিএমসির নেত্রী সুজাতা মণ্ডল খানের দ্বারা তফসিলি জাতি বিভাগে দেওয়া বিতর্কিত বক্তব্যের আলোকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। राष्ट्रपति महोदय को एक मांग पत्र सौंप रहे हैं कि जो सुजाता मंडल खान ने वहां बयान दिया है एससी समाज के खिलाफ में, उसकी जांच हो और जांच करके उनको दंडित किया जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। किसी भी समाज को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये सभ्य राजनीति के लिए, अच्छी राजनीति के लिए बहुत गलत है। পরশুটি বিদ্যাসাগর পল্লী এলাকায় আজ বঙ্গবন্ধু তারা দ্বিতীয় ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রায় 300 জনকে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলের মহিলা এবং প্রবীণরা বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সমস্ত সদস্যরা এটিকে সুচারুভাবে পরিচালনা করে শিবিরটি সম্পন্ন করেন। এই অবসরে প্রতিষ্ঠানের অপর্ণা গুহ এবং মানিক মল্লিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलन संघ क्लब के प्रांगण में सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा मुहिम जो कोरोना महामारी बीमारी को जंग में इस हमारे इस क्षेत्र के क्लब के तमाम सदस्यगण एवं बंगबंधु संस्था के तमाम सदस्यगण संयुक्त रूप से मिलकर टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा कि जल्द से ज़्यादा लोग इस टीकाकरण का लाभ उठाएं और इस बीमारी से जंग से हम लोग को जीतना है। आज हमारे दूसरे रोज का कैंप का आयोजन हम लोग विद्यासागर पल्ली नेताजी मिलन संघ में लगाए हैं और काफ़ी यहाँ पर महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग कैंप लगाने का उद्देश्य है कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोग जागरूक नहीं है। बहुत लोगों का अभी भी डर है कि कोरोना वैक्सीन लेने से शायद फीवर हो जाएगा, शायद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ये जो लोगों का जो भावनाएं हैं ये भावनाओं को दूर करना है। दूसरी बात है कि हम लोग 12 तारीख को जो लगाया था कैंप, उसमें करीब हमारे सर्वे में निकला है करीब 600 लोगों का वैक्सीनेशन लेने का था, पर हम लोग उस दिन 270 लोगों को लिए हैं और आज भी कुछ ऐसे जिन लोगों को उस दिन नहीं मिला या हमारे विद्यासागर पल्ली में जिस तरीक़ा से लोगों का भागीदारी बहुत ज़्यादा हो गया है, हमको लगता है आज यहाँ पर भी हमारे 300 से ज़्यादा ही हमारे लोगों को वैक्सीनेशन का हम लोग का देने का संकल्प लिया है। दूसरी बात है कि हमारे वैक्सीनेशन जो जगह जगह पे हम लोग कैंप का अभी आयोजन किए हैं और हम लोग ये जागरूकता हम लोग चला रहे हैं काफ़ी दिनों से और अभी भी लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि इसके बाद में भी जो कैंप लगाएंगे उससे और इससे भी ज़्यादा लोगों भागीदारी लें। और यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि हमारी महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। दीदी बोलना चाहिए लेकिन हम बहन बोल रहे हैं, बहुत छोटी है। ऐसे नेता खाली नहीं है, ऐसे प्रतिनिधि पूरा गांव शहर जो घर को घर काम कर रही है, हम उनको सही में सही दिल से अपना शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आगे चल के ऐसे काम करते रहे जो हमारे देश के लिए नहीं, हमारे गांव से लेकर शुरू करके ऐसे प्रतिनिधि हम फ्यूचर में मांग रहे हैं। हम चाह रहे कि ऐसे प्रतिनिधि बने हमारा गांव का परसूडी एरिया का नहीं, खाली शहर से लेकर कि इससे प्रतिनिधि बने जो सही में दिल से अपने हर काम के लिए, खाली ये वैक्सीनेशन नहीं है, अरे पहली बार गांव में घर तक घुस के इसे सर्विस दिया जा रहा है, ये हम उनके लिए शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम चाहेंगे बस्तीवासी चाहेंगे कि वो ऐसे नेता ऐसे प्रतिनिधि हमारे जनप्रतिनिधि बने जो सही में आगे चल के हमारे एरिया का प्रतिनिधित्व करें। জামশেদপুরে বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র কুনাল সারেঙ্গি সংবাদদাতা সম্মেলনে বক্তব্য রেখে বলেছেন যে ঝাড়খণ্ড আদালতের বক্তব্য অনুযায়ী রাজ্যে জরুরি মেডিকেল ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে। ये एडवर्टीजमेंट झारखंड सरकार का निकला है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। 8 ऐसे काम जो पहली बार झारखंड में हुए हैं। इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि जब पूरे राज्य की, पूरे देश की और पूरे विश्व की प्राथमिकता स्वास्थ्य है, कोविड-19 से लड़ाई है, ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ ये जो 8 उपलब्धियां बोली गई हैं, इसमें एक भी उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। इसका मतलब राज्य सरकार भी ये स्वीकार करती है कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई काम पिछले दिनों नहीं हुआ जिसे वो लोगों के सामने रख सके। यही बताता है कि इनकी प्राथमिकता क्या है। आपने देखा होगा जब कोरोना की लड़ाई चल रही थी 2020 में, जब शुरू हुई थी तो एक कोविड-19 की हेल्पलाइन शुरू की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार के इनके मंत्री ट्विटर पर खूब एक्टिव रहते हैं और कहते हैं कि ट्विटर के माध्यम से राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान होता है। झारखंड में इतनी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आई है। ये शर्मनाक है कि झारखंड राज्य सरकार की कोविड-19 की हेल्पलाइन की जो आधिकारिक हैंडल है ट्विटर का, वो आखिरी बार अपडेट हुआ था जुलाई के महीने में पिछले साल। इसके बाद से जो लगातार आज संख्या बढ़ रही है, ये हैंडल कहीं नहीं है। जिस तरह से व्यवस्था कहीं नहीं है, उसी तरह से ट्विटर से संबंधित सूचना, ट्विटर से संबंधित जानकारी, लोगों को मदद के लिए जिस हैंडल को बनाया गया था, वो हैंडल तक राज्य सरकार ने अभी तक वो एक्टिव नहीं है, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। उसी तरीके से जो हेल्पलाइन नंबर था वो भी काम नहीं कर रहा है। और ये भी पहली बार हुआ है कि आज रांची के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। रांची के इमरजेंसी में आप देखिए, एक पत्रकार साथी ने ही अपनी दुख को किस तरह से बयां किया है राज्य की जनता के सामने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने भी मुख्यमंत्री जो सहायता कोष था उसमें
डोनेशन दिया था, मैंने भी उसमें अपना दान दिया था, लेकिन आज वो मांग कर रहे हैं कि मेरे पैसे वापस कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपने रिलेटिव को लेकर जब रांची के रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ये भी पहली बार हुआ है, ये भी पहली बार हुआ है कि जब महामारी राज्य की 3.5 करोड़ जनता के सर पर है, लोगों की जानें जा रही हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं संक्रमित मरीजों की संख्या के, उस समय में रिम्स की बैठक की जाती है और उस बैठक में सीटी स्कैन की मशीन खरीदना, RT-PCR की जांच को बढ़ाने के लिए 2 और मशीन खरीदना, कैथ लैब बनाना और 2 और लैब टेक्नीशियन के पदों की स्वीकृति देने का काम अब हो रहा है।